خدا انجیل مقدس لوکا کے مطابق اس کے 70ویں باب میں سے سنیں۔ ایک دن رسولوں نے خداوند سے کہا کہ ہمارا ایمان بڑھا۔ خداوند نے کہا کہ اگر تم رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان رکھتے اور تم اس شہتوت سے کہتے کہ جڑ سے اکھڑ کر سمندر میں ڈالا تو تمہاری مانتا۔ اور تم میں سے ایسا کون ہے جس کا ایک غلام الواہا یا چرواہا ہو کہ جب وہ کھیت سے آئے تو اس سے کہے کہ جلد آ کر کھانا کھانے بیٹھ، بلکہ اس سے یہ نہ کہے کہ میرا پیشہ تیار کر کہ جب تک کہ میں کھاؤں پیوں کمر بستہ ہو کر میری خدمت کر، اس کے بعد پھر خود کھا پی لینا۔ کیا وہ اس غلام کا اس لیے احسان مانے گا کہ اس نے حکم کی باتوں کی تعمیل کی؟ اسی طرح ان سب باتوں کی تعمیل کے بعد جن کا تمہیں حکم ہوا تم بھی کہو کہ ہم نکمے غلام ہیں، جو کرنا ہم پر واجب تھا وہی کیا۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ سب تشریف رکھیں۔ مسیح خدا میں میرے عزیز مومنین، آج سال کے دوران 27واں اتوار ہے اور آج کا تلاوتوں کا مرکزی عنوان ہمارے لیے ایمان کا ہے کہ جتنا بڑا ایمان اتنی بڑی برکت۔ جتنا بڑا ایمان لے کر خداوند کے گھر میں آئیں گے، جتنے بڑے ایمان کے ساتھ اس کے حضور اپنے آپ کو پیش کریں گے، اتنا بڑا معجزہ، اتنی بڑی برکت، اتنا زیادہ قوت وہ آپ کو روحانی طور پر بخشے گا۔ تو اس لیے آج ہم ایمان کے موضوع پر بات کریں گے اور ایمان میں مضبوطی کے حوالے سے سیکھیں گے۔ آج کی انجیل جو ہمارے سامنے پیش کی گئی ہے، اس انجیل میں ہم نے دیکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے رسول، 12 رسول جو خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ہیں، رہتے رہے ہیں، پچھلے 3 سال سے ہیں، لکھا ہے کہ وہ یسوع سے کہتے ہیں اے خدا ہمارے ایمان کو بڑھا۔ کیا لائن بولی ہے انہوں نے؟ اے خدا ہمارے ایمان کو بڑھا، خداوند ہمارے ایمان کو بڑھا۔ اس لائن کو سن کر ایک دفعہ میں چونک جاتا ہوں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جو لوگ یسوع کے ساتھ پچھلے 3 سال سے ہیں، انہوں نے 3 سال تک یسوع کی تعلیم کو سنا ہے، 3 سال تک وہ معجزات ہوتے ہوئے یسوع سے دیکھتے رہے ہیں، انہوں نے دیکھا ہے کہ یسوع نے مردوں کو زندہ کیا ہے، انہوں نے دیکھا ہے کہ یسوع نے بھوکوں کو سیر کیا ہے، انہوں نے دیکھا ہے کہ وہ لنگڑوں کو چلاتا ہے، وہ گھوڑیوں کو پاک صاف کرتا ہے، اور یہاں تک کہ اس کے پاس قوت ہے کہ وہ لوگوں کے گناہ بھی معاف کرتا ہے۔ ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے باوجود جب سفر ختم ہونے کو ہے، یروشلم میں پہنچنے کو ہے، وہ دن قریب ہے، ان کا ایمان مضبوط ہونے کی بجائے کم ہو رہا ہے، اور وہ یسوع سے کہہ رہے ہیں اے یسوع، اے خدا ہمارے ایمان کو بڑھا۔ کیا آپ کو یہ بات چونکا دینے والی نہیں لگتی؟ آپ سوچتے نہیں کہ کیسے ان کا ایمان کمزور ہو گیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس سوال کو ہم اگر اپنے اوپر لائیں تو پھر ہم اسے ضرور آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ کبھی کبھی ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ایمان کمزور ہو گیا، تو مجھے بتائیں ایمان کمزور ہوتا کیوں ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ایمان کمزور ہوتا ہے؟ پہلے تو انہیں کو سوال بنتا تھا، لیکن میں نے چاہا کہ ہم اسے تھوڑا آسان کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہمارا ایمان کیوں کمزور ہوتا ہے۔ کیا وجہ ہے ایمان کے کمزور ہونے کی؟ کہ ایمان کمزور ہو گیا، آپ کا ایمان کیوں کمزور ہوتا؟ کیوں آپ تک مگا جاتے ہیں ایمان میں؟ شک آ جانا،
शक जब आ जाए, शक क्यों आ जाता है? शक क्यों आता है? खुदा पे यकीन ना होना। खुदा पर यकीन क्यों नहीं होता, क्यों नहीं रहता? क्यों ईमान में डगमगा जाते हैं? जब हमारे काम जल्दी जल्दी नहीं हो रहे होते तो इसलिए भी इंसान शक में आ जाता है। हाँ, तो शक में आ जाता है। शक कौन डालता है? अच्छा, इसे और आसान करते हैं। चले, तकवीन की किताब में पहले गुनाह का जिक्र है। पहला गुनाह इंसान ने कैसे किया था, क्यों हुआ था इंसान से? पहला गुनाह किसने किया? आदम और हवा। बोलो तो सही जवाब दे दो। माई आवाज़ है आप, ठीक है, माई आवाज़ से आदम ने किया। तो क्या गुनाह क्या किया था? काबे में आके वो फल खा लिया। किसकी सुनी थी? शैतान। हाँ, ईमान कैसे पैदा होता है? तिलावत मुक़द्दस में क्या लिखा है? ईमान कैसे पैदा होता है? सुनने से। सुनने से। ईमान किससे पैदा होता है? सुनने से। किसको सुनने से? खुदा के कलाम। इब्तिदा में खुदा ने क्या कहा था? पहले खुदा की सुनी थी, खुदा की सुनते हुए खुदा ने कहा कि तुमने ये दरख्त और इसका फल, इस दरख्त को छूना नहीं, इस दरख्त के फल को खाना नहीं। खुदा की सुनने की बजाय किसकी सुन ली थी? और फिर क्या हुआ? गुनाह हो गए। इसी तरह जब हम भी दूसरों की सुनना शुरू कर देते हैं ना, तो अपने ईमान से डगमगाना शुरू हो जाते हैं, अपने ईमान से हट जाते हैं, हमारा ईमान कमजोर होना शुरू हो जाता है। मिसाल बहुत सारी है। एक्चुअली सुन के जाते हैं खुदा का कलाम, कभी कभी मुकद्दसा मरियम की ईद होवे, मुकद्दसा मरियम के बारे में सुन के जाते हैं, ज़ियारतां ते मुकद्दसा मरियम के कलाम सुनते हैं, लेकिन उतो ही बाहर निकलते हैं कोई और कुछ और दसदा है, तो फिर की होता है? ईमान तो फिर जाते हैं, किसी और की सुनकर ईमान से डगमगा जाते हैं। जब हम दूसरों की सुनना शुरू करते हैं, खुदा की नहीं सुनते, खुदा की सुनेंगे तो ईमान पे नहीं डगमगाएंगे, लेकिन जब इंसानों की सुनेंगे, दूसरों की सुनना शुरू करेंगे तो क्या होगा? ईमान में डगमगाना शुरू हो जाएंगे। आज ये शागिर्द, ये रसूल जब यीशु से कहते हैं हमारा ईमान बढ़ा, तो आप क्या सोचते हैं? इनका ईमान कम क्यों हो गया था? क्यों ईमान कम हो गया था? साड़ी तरह तुझिया की सुनने लग पे सन, दूसरों की सुन रहे थे। फकीह फरीसी इनसे आकर कहा करते थे कि तुम और तुम्हारा उस्ताद शरीयत पर अमल नहीं करते। इस तरह की बातों से ईमान डगमगा जाता है। आज भी हमें लोग आकर कहते हैं कि कैथोलिकली सी एंड के फौरन असी की हो जाने ईमान से डगमगा जाने हैं। इसी तरह शागिर्दों को भी जब फरीसियों ने कहा कि शरीयत पर तुम लोग अमल नहीं करते, क्योंकि शरीयत में लिखा है कि सबत के दिन में कोई बदनी मेहनत का काम नहीं करना, तो तुम्हारा यीशु मौजज़ात करता और मौजज़ात करके लोगों को कहता है कि अपना कटोरा उठाओ और चलो। तो ये तो सबत के मुखालिफ है। लोग जब ये सुनते हैं, कहते हैं, तो रसूलों का जो ईमान है वो क्या हो रहा है? कम हो रहा है, डगमगा रहा है। इसलिए क्या कहते हैं? ऐ खुदावंद हमारा ईमान बढ़ा। आज के हालात को देखते हुए, जैसे आजकल हम चल रहे हैं, लोगों की बातों को सुनते हैं और फौरन ईमान से डगमगा जाते हैं। मैं समझता हूँ आज हम सबको भी ये कहने की फिर तो जरूरत है, ऐ खुदावंद हमारा ईमान बढ़ा। और फिर जब आप आज खुदावंद को ये कहते हैं ना कि ऐ खुदावंद हमारे ईमान को बढ़ा, तो खुदावंद आज क्या फरमाता है? गौर से सुनिए। देखा है, खुदावंद ने कहा कि अगर तुम राई के दाने के बराबर भी ईमान रखते और तुम इस शहतूत से कहते कि जड़ से उखड़कर समुद्र में जा लग, तो वो जा लगता। ये बड़ी नामुमकिन सी बात की है खुदा ने, बड़ी नामुमकिन सी बात है। शहतूत का दरख्त अगर उसे जड़ समेत काट दिया जाए, आप उसे कहीं और पर लगाएं, वो कभी भी नहीं लगता। नामुमकिन सी बात है। लेकिन ईमान तो है ही ये कि नामुमकिन है, लेकिन खुदावंद के नजदीक मुमकिन है। क्योंकि कहता है कि शहतूत को जड़ से भी उखड़ने को कहोगे और कहोगे कि उखड़ कर कहीं और डाला, तो वो वहां पर भी चल पड़ेगा। और फिर और नामुमकिन बात क्या है कि कोई भी दरख्त को आप निकालेंगे और निकाल कर समंदर में डाल जाएं,
कभी चल ही नहीं सकता, कभी मुमकिन ही नहीं है। लेकिन अगर ईमान है तो नामुमकिन भी मुमकिन हो सकता है। बड़ी जबरदस्त मिसाल भी है, तफसीर भी सुनाती है कि ईमान राई के दाने के बराबर भी हो तो आप अगर खुदावंद से कुछ भी मांगे, कुछ नामुमकिन भी मांग ले, जो मुमकिन नहीं है वो उसे मुमकिन करके दिखाएगा। वो आपको जितना बड़ा ईमान लेकर जाएंगे उतनी ज्यादा बरकत देगा। मैं अभी 3 मिसालें दूंगा, 3 आपको एग्जाम्पल्स बाइबल मुकद्दस में से निकाल के दूंगा कि कितना बड़ा ईमान था और उतनी ही बड़ी बरकत भी पाई है। सबसे पहली मिसाल हम देखते हैं पुराने अहदनामे में ईमानदारों के बाप की। ईमानदारों का बाप कौन है? अच्छा, मैं भी बोलना तो करना जवाब भी उठा है। ईमानदारों का बाप कौन है? इब्राहीम। इब्राहीम की मिसाल देखते हैं। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि इब्राहीम खुदावंद के कलाम को सुनने से पहले, खुदावंद की आवाज को सुनने से पहले बहुत ज्यादा अमीर शख्स था। उसके पास बहुत दौलत थी, बहुत माल मवेशी, सब कुछ, नौकर चाकर सब कुछ था उसके पास। और सिर्फ एक चीज नहीं थी, और वो क्या थी? औलाद की नेमत नहीं थी। सारा से ब्याह तो कर चुका था लेकिन औलाद की नेमत नहीं थी। और खुदावंद जब उससे हमकलाम हुआ तो खुदावंद ने उससे कहा कि तू अपना सब कुछ छोड़ दे, अपना सब कुछ छोड़ दे और मैं तुझे वादे की सरजमीन में ले जाऊंगा और वहां पर तेरी नस्ल को बढ़ाऊंगा। अब एक फिर नामुमकिन सी बात है कि देखें, आपको अगर कहा जाए कि आज आपने अपनी नौकरी छोड़ देनी है, अपना सब कुछ छोड़ देना है और छोड़कर कहीं और जाकर अपनी जिंदगी का आगाज करना है, तो पहले सोच के आएगी ऐ चीजा ऐ सहूलता में तो दोबारा उससे मिला नहीं है, कभी भी नहीं जावांगे, कभी भी नहीं छोड़ के जावांगे। लेकिन इब्राहीम के नजदीक सबसे पहला चैलेंज ये है कि वो इन तमाम सहूलतों को छोड़ दे और खुदा पर ईमान रखे कि खुदावंद उसे वादे की सरजमीन में लेकर जाएगा। दूसरा चैलेंज उसके सामने कि इतना ज़हीब हो चुका है, 60-70 के करीब उसकी उम्र हो चुकी है और खुदावंद उससे कह रहा है कि मैं तेरी नस्ल को बढ़ाऊंगा। साइंस कहती है कि इतनी उम्र में औलाद का होना नामुमकिन है। लोग उससे पहले ही बातें कर करके सुनाते थे कि तेरी औलाद अब नहीं होगी। इन तमाम नामुमकिन चीजों को सुनने के बावजूद क्या किया है? खुदा पर ईमान रखा है और ईमान रखकर सब कुछ छोड़ा और वादे की सरजमीन की तरफ कदम बढ़ाने शुरू कर दिए। फिर लिखा है जब 99 वर्ष का हो गया, 99 इयर्स का हो गया, तो उस वक्त उसने 3 मेहमानों को अपने घर आते देखा है और फिर उनकी खिदमत की और उनकी खिदमत करने के बाद उन्होंने कहा कि अगले साल इन्हीं दिनों में तेरे वहां औलाद होगी, तेरा बेटा होगा। अब इस बात पर भी ईमान ले आया है। अंदर लिखा है सारा अंदर थी और वो हंस रही थी। क्यों हंस रही थी? वो जानती थी मैं इतनी बुढ़ी हो गई, मेरा बंदा इतना बुढ़ा हो गया और औलाद हो ही नहीं सकती, नामुमकिन है। लेकिन ईमान रखा इब्राहीम ने, इसीलिए अब सारा के बारे में इतने सुन रहे कि ईमानदारां दी ओ मां है, लेकिन सुनते हैं ईमानदारों का बाप इब्राहीम है, क्योंकि इब्राहीम आसान नहीं, इब्राहीम ने मजाक नहीं उड़ाया इस बात का खुदा की, बल्कि इब्राहीम खुदा पर ईमान ले आया, यकीन रखा उसने, ईमान ले आया कि खुदावंद ऐसा करेगा। इसलिए आज उसे ईमानदारों का बाप कहा जाता है और उसकी नस्ल खत्म नहीं बल्कि उसकी नस्ल खुदावंद ने इतनी बढ़ा दी है कि अब पूरी दुनिया में जानी जाती है। उसकी हाजरा से भी एक औलाद है, इस्माइल, आप देख सकते हैं पूरा अरब इस्माइल ही की औलाद है। दूसरी जानिब आप सारा से उसकी औलाद को देखें तो सारा से औलाद कौन है उनकी? तमाम यहूदी। और आज आप यहूदी कौम की सरफराजी देखें, ये सरफराजी किसकी वजह से है? इब्राहीम के ईमान की वजह से, क्योंकि खुदावंद ने इब्राहीम से वादा किया था कि तेरी नस्ल को बढ़ाऊंगा। खुदावंद ने उसकी नस्ल को बरकत दी है। इब्राहीम के ईमान ने, बड़े ईमान ने उसे बड़ी बरकत दिलाई कि अब वो ईमानदारों का बाप है, अब वो एक बहुत बड़ी कौम का बाप है। आज आप यहूदियों को तरक्की करता देखते हैं, आप हैरान होते होंगे कि
यहूदी वो वाहिद कौम है जो एक छोटा सा मुल्क है। हमारा जितना ये लाहौर जितना एक मुल्क है, पाकिस्तान तो बहुत बड़ा है, लाहौर जितना एक मुल्क है, और इस मुल्क ने दुनिया में बड़ा नाम किया हुआ है। दुनिया के लोग इनसे डरते हैं। दुनिया की आर्मी के लिहाज से भी देखें तो वो सबसे आगे हैं। दुनिया में वो कह सकते हैं नई चीजें जो आ रही हैं, नई तजदीद जो हो रही है, उसमें सबसे आगे इसराइल है। आप यहाँ तक कि ये पंखों इन चीजों को देखते हैं, ये सब कुछ कहाँ से आया? इसराइल से आया। दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट कहाँ पर हैं? इसराइली हैं। दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी कौन सी है? वो इसराइल की है। तो हर लिहाज से आप देखें तो इसराइल तरक्की कर रहा है। क्यों? इब्राहिम के ईमान की वजह से। क्योंकि इब्राहिम ईमानदारों का बाप, उसने खुदावंद पर बड़ा ईमान रखा, खुदावंद ने उसको उसकी नस्ल को बड़ी बरकत दी। दूसरी मिसाल हम नए अहदनामे में देखते हैं कि एक औरत 12 साल से बीमार थी और यीशु का सुन रखा था और यीशु को देखना चाहती, उससे शिफा पाना चाहती थी। और लिखा है कि एक बहुत बड़ा मजलूम था और डर रही थी कि वो अपनी इस बीमारी को यीशु को कैसे बयान करेगी, क्योंकि इतने लोग हैं, लोग सुनकर मेरा मजाक उड़ाएंगे। डर रही थी, खौफजदा थी, लेकिन शिफा भी पाना चाहती थी। ईमान भी था, और ईमान इस हद तक का था कि ये सोच रही थी कि मैं यीशु का पल्ला ही छू लूंगी तो शिफा पा लूंगी। और क्या लिखा है? इतने बड़े हजूम में उसने इस ईमान से यीशु के पल्ले को छू लिया, और क्या हुआ कि 12 बरस से जो बीमार थी वो उसी वक्त ठीक हो, उसने उसी वक्त शिफा पा ली। और खुदावंद यीशु मसीह मुड़कर देखते हुए अपने शागिर्दों से कहने लगे कि किसने मुझे छुआ है? और शागिर्द कहते थे कि तुझ पर तो हजूम गिरा पड़ता है, हम कैसे पता करवाएं कि तुझे किसने छुआ? यीशु कहता है कि नहीं, किसी ने मेरे पल्ले को ईमान से छुआ है और मुझसे कुव्वत निकली है, बरकत निकली है, शिफा निकली है। और फौरन डरते मारे सामने आ गई और कहने लगी कि मैंने छुआ है, मैं पिछले 12 साल से बीमार थी और ईमान रखती थी कि तेरा पल्ला छू लूंगी और शिफा पा लूंगी। तो बड़ा ईमान था, बड़े ईमान से छुआ था और शिफा पा ली। तो बड़ा ईमान शिफा दिलाता है। तीसरी मिसाल हम नए अहदनामे में ही देखते हैं कि एक सूबेदार खुदावंद यीशु मसीह के पास आ गया और कहने लगा कि मेरा गुलाम बीमार है, तू उसे शिफा बख्श सकता है। तो यीशु ने कहा मैं तेरे साथ तेरे घर चलता हूँ और उसे शिफा देता हूँ। उसने कहा नहीं, मैं खुदावंद, तू मेरे घर तक ना, लेकिन तू सिर्फ कहीं दे तो मेरा गुलाम शिफा पाएगा। और यीशु ने क्या कहा? यीशु ने कहा कि मैंने इतना बड़ा ईमान आज तक इसराइल में भी नहीं देखा। और उसी वक्त कहा कि जा तेरा गुलाम शिफा पाएगा। लिखा है कि वो सूबेदार भागता भागता अपने घर आया, वो देखा, क्या देखता है कि उसका वो गुलाम जो इतने दिनों से बीमार करीबुल मर्द था, मरने वाला था, वो उठकर खिदमत कर रहा था, काम कर रहा था। और उसने कहा कि तूने कब शिफा पाई? उसने कहा मैंने फलां घड़ी शिफा पाई। तो फौरन याद किया कि इसी घड़ी यीशु ने कहा था कि तेरा गुलाम शिफा पाएगा। तो बड़े ईमान से जब हम अपने लिए, अपने अजीजों के लिए मांगते हैं, तो उतना बड़ा मौजूदा अपने अजीजों में भी होता हुआ देखते हैं। तो तीन हमने मिसालें ली हैं कि जितना बड़ा ईमान, उतनी बड़ी बरकत, उतनी बड़ी कुदरत खुदावंद की, उतना बड़ा मौजूदा हमारी जिंदगी में हो सकता है। तो इसलिए आप कभी भी ना उम्मीद ना हो, कभी भी अपने ईमान से डगमगाएं नहीं, क्योंकि जब आपको सब कुछ नामुमकिन नजर आ रहा होगा, सारे दरवाजे बंद होते हुए नजर आ रहे होंगे, सब कुछ कह देंगे, हर कोई कहेगा कि अब नहीं हो सकता, खत्म हो गया, बस कर दो, उस वक्त खुदावंद आपकी जिंदगी में आपके ईमान के वसीला से काम करेगा और आप बड़ी बरकत का तजर्बा करेंगे। बड़ी बरकत का तजर्बा उस वक्त करेंगे। क्या होगा कि ईमान ही के हवाले से एक और बात याद आती है कि जब खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा तो शागिर्दों पर जाहिर हुआ। सब शागिर्द ईमान ले आए, लेकिन तोमा मौजूद नहीं था। कहने लगा कि
کہ میں جب تک اس کے زخموں کے چھید میں اپنے ہاتھ اور انگلیاں ڈال کر دیکھ نہ لوں گا تب تک کیا کروں گا؟ ایمان نہ لاؤں گا۔ لیکن ایمان تو یہ ہے ہی نہیں کہ دیکھ کر کہنا کہ میں ایمان لایا ہوں، ایمان تو ہے ہی وہ کہ جب نہیں دیکھا تب بھی ایمان لایا ہوں۔ اسی لیے یسوع کہتا ہے کہ مبارک ہے وہ جو بن دیکھے ایمان لائے، مبارک ہے وہ جو بن دیکھے ایمان لائے۔ ایمان ایک ایسی حقیقت ہے جو آپ دیکھ نہیں سکتے، جو آپ چھو نہیں سکتے، جو چھو کر نہیں ہو سکتی۔ اب میں کہوں کہ یہاں پر یہ ڈائس ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ ڈائس ہے کہ نہیں ہے؟ ڈائس ہے، کیوں؟ کیونکہ آپ اسے دیکھ سکتے ہیں، آپ اسے چھو سکتے ہیں، آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ یہ ڈائس ہے۔ لیکن جب میں کہوں کہ خداوند یسوع مسیح در حقیقت کی اوپر اس میں موجود ہے تو آپ وہ اسے دیکھ نہیں سکتے، لیکن ایمان ہے کہ وہ اس میں موجود ہے۔ یہی ایمان ہے۔ اندیکھی چیزوں پر جو دیکھی بھی نہ جا سکے، جو نظر سے نہ دیکھ سکیں، جو محسوس نہ کر سکیں، لیکن ایمان ہو کہ یہ ایسا ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اور اگر ایسا ایمان آپ میں ہوگا تو آپ بڑی برکت کا تجربہ کریں گے۔ اور یعقوب رسول فرماتا ہے کہ ایمان بغیر اعمال کے مردہ ہے۔ ایمان کے لیے ہمیں اعمال بھی دکھانے چاہیے۔ ہمارا ایمان ہمارے اعمال سے نظر آتا ہے۔ اگر ہمارے اعمال نہ ہو تو ہمارا ایمان نظر نہیں آتا۔ کبھی بھی لوگ کہتے ہیں کہ میں بڑا ایمان رکھنا تھا، میں بہت ایمان رکھتا، لیکن ایمان اعمال میں نظر نہیں آ رہا ہوتا، تو پھر ہم اپنے ایمان کے منافی ہی چل رہے ہیں۔ اگر آپ کا ایمان یسوع پر ہے، اگر آپ اس پر ایمان رکھتے ہیں، کیونکہ اس نے فرمایا ہے کہ جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے وہ مر بھی جاؤ تو زندہ رہے گا، اور وہ اگر وہ زندہ ہے تو وہ زندہ رہے گا، وہ مر گیا ہو تو میں اسے مردوں میں سے زندہ کر دوں۔ تو ایمان رکھنا اور ایمان کے مطابق چلنا نہایت ضروری ہے زندگی پانے کے لیے۔ اگر ہم اپنے ایمان کو اعمال کے بغیر رکھتے ہیں تو ہم بھی مردہ ہی ہیں۔ جیسے ہمارا ایمان مردہ، ہم بھی مردہ ہی ہوں گے، پھر ہم بھی مریں گے، پھر ہم بھی ہمیشہ کی زندگی نہیں پائیں گے۔ اگر ہمیشہ کی زندگی پانا چاہتے ہیں تو اس کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ اس پر ایمان رکھیں اور اسی ایمان کے موافق اپنی زندگیوں کو گزاریں، ورنہ ہم بھی یہی کہیں گے کہ ہمیں بھی کہا جائے گا کہ آپ نکمے غلام ہیں۔ نکمے غلام وہ کیونکہ فریسیوں نے کہتے تھے کہ جی شریعت پر عمل کرنا ہے، اس سے بڑھ کر آگے کچھ نہیں تھے کرتے، شریعت میں بس جو لکھا ہے وہیں تک محدود کر لیا تھا خود کو۔ آپ آج کل بھی دیکھتے ہیں ہمارے ارد گرد رہنے والے لوگ بھی بس جو بتایا جا رہا ہے وہ ہی کرتے رہنا ہے، اس سے آگے نہیں بڑھتے۔ اب آپ خود بتائیں، اتوار کو جب چرچ لگتا ہے کتنی دیر تک میں سب کو زیادہ کلام سنا سکتا ہوں؟ کتنی دیر تک؟ 10 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ، 25 منٹ، 30 منٹ۔ لاسٹ ٹائم جو ہے زیادہ ہو گیا سی، 40 منٹ ہو سکتا ہے۔ اس سے زیادہ تو نہیں میں سنا سکتا، کیونکہ مجھے بھی پتا ہے میں نے اس سے آگے بھی جا کر بھی عبادت کروانی ہے۔ تو آپ کو جتنا بھی بتایا جاتا ہے تو اتنے تک ہی رہ جاتے، کبھی کبھی تو اتنے تک بھی نہیں رہتے، بلکہ جو سننے ہیں سن کے بھول بھی جانے ہیں۔ تو لکھا ہے کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے تسی سنتے ہو، لیکن سننا خدا کے کلام سے، یعنی اس سے آگے بھی بڑھنا ہے، اس سے آگے بڑھ کر خدا کے کلام کو کھولنا بھی ہے، خداوند کے کلام کو خود بھی پڑھنا ہے۔ پھر ایمان میں مضبوطی ملے گی، پھر ایمان میں پختگی ہوگی، پھر خداوند سے جو کچھ مانگیں گے خداوند آپ کو دے گا، کیونکہ یسوع کہتا ہے کہ جو کچھ تم میرے نام سے باپ سے مانگو گے باپ تمہیں دے گا۔ تو پھر ایمان میں پختگی چاہیے، ایمان میں مضبوطی چاہیے، تو خود بھی خداوند کے کلام کو پڑھنا ہے۔ ہمارے کیتھولک مسیحیوں کا یہ بہت بڑا پرابلم ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ المیہ ہے کہ ہم صرف اور صرف اتوار کو عبادت میں آتے ہیں اور وہیں پر جو سنتے ہیں وہی کافی ہوتا ہے ہمارے لیے۔ بائبلز بھی ہم نے گھر میں رکھی ہیں، کہیں کے ویسے گھروں میں بائبل بھی نہیں پڑھی ہوتی، جاتے ہیں وزٹ کرتے ہیں پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ فرضی بائبل نہیں، اور جن کے گھر میں بائبل پڑھی ہے وہ بھی بس ایک پلیس پر پڑھی ہے،
और वो वहीं पर पड़ी रहनी है खुदा साहब, कभी भी उतार कर खोलनी नहीं है, बस उसी दिन उतारी जाएगी, उसी दिन खोली जाएगी जिस दिन फादर जी आएंगे या बाबू जी आएंगे, कहेंगे कि बाइबल ले आओ, बाइबल पढ़नी। इसलिए ईमान में मजबूत नहीं, दूसरे आपसे बात करते उनकी बातों में आ जाते हैं, वो बतलाते हैं और हम उनकी सुनकर उनके मुताबिक करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए कई आकर कहते हैं कि ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜਾदू हो जाता है, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ फलानी चीज होई गई है, ਤੁਹਾਡੇ घर ਤੇ फलाना मसला है, ਅਸੀਂ फौरन की करते हैं ईमान को डगमगा जाते हैं, तो कहते हैं हाँ जी होया होएगा, डरना शुरू कर देते हैं, खौफजदा होना शुरू कर देते हैं। उसकी वजह यही है कि हमारा ईमान कमजोर हो जाता है, हम खुदावंद के कलाम के नहीं सुनते, लोगों की बातों को सुनते हैं, जबकि खुदावंद के कलाम को सुनने से ईमान मजबूत होता है। आए आज खुदावंद से ये कहें कि खुदावंद मेरे ईमान को बढ़ा, खुदावंद आपके ईमान को बढ़ाएगा और आपको खुदावंद के कलाम को खोलना पड़ेगा। आए खुदावंद के कलाम को खोलें, खुदावंद के कलाम को खोलने वाले बने, खुदावंद के कलाम को पढ़ने वाले बने, ताकि ईमान में मजबूत हो सकें। उसी हमारे खुदावंद के वसीला से आज सब खड़े हों।